Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening of class 12 present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we have started the phasor diagram concept of the AC. यानी हम लोगों ने phasor diagram के concept को start कर दिया है. And in the previous lecture, we discuss about what is going to happen if an AC source is connected across the resistor. तो एक बार जल्दी से क्विकली ध्यान से ले लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है that when resistor is connected, when you connect a resistor R across the AC source, what we get that if E is equal to E naught sin omega t, then I would be also I naught sin omega t. It means for only resistor the phase difference between the current and voltage is zero. It means the current and voltage are in same phase when the resistor is connected across AC source. The second point, when inductor was connected. So when the inductor was connected across an AC source, what we get the conclusion? If E is equal to E naught sin omega t, then I was I naught sine omega t minus phi, which indicates that minus phi by 2, which indicates that the phase difference between the current and voltage is pi by 2. दोनों के बीच का फेज का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है एंड ईएमएफ लीड्स दी करंट. सीधा सा बात ये है, यानी आपका जो ईएमएफ है वो आपके करंट को लीड करेगा, यानी बाय द फेज की टर्म में, एंगल की टर्म में ईएमएफ करंट को लीड करेगा, या फिर आप बोल सकते हो करंट लैग्स द ईएमएफ. और इंडक्टर में जो हमें नई चीज पता चली, द अपोजिशन ऑफ इंडक्टर हुज फॉर्मूला इज एक्सएल विच इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इनटू एल, which is called as the inductive reactance, means the opposition offered by the inductor across an AC source. So these are the two parameters जो हम लोग already study कर चुके हैं. हम लोगों ने रजिस्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और इंडक्टर को भी AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. Today we are going to start with the third device which is going to connect across the AC source, and that third device is only capacitor. तो हमारा जो तीसरा केस होने वाला है, the two cases we have studied, only resistor, only inductor. The third case is only capacitor across an AC source. चलिए आज एक कैपेसिटर को AC सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट करके देखते हैं. So resistor has been done, inductor has been done, now it is turn for the capacitor. So let's talk about the circuit diagram. Please इस conclusion को मैं साइड में ही रखता हूं. So let's talk about the circuit diagram. So circuit diagram, as usual, we have a capacitor with the capacitance C, which is being connected across an AC source. E is equal to E naught sin omega t. तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है C, and you are connecting that capacitor across an AC source whose EMF is E naught sin omega t. I am again calling this statement, please आप लोग इस फेज एंगल को नहीं बदल सकते, because this parameter EMF E is equal to E naught sin omega t, this was the output, or you can say this was the result of AC generator. तो AC जनरेटर आपको E naught sin omega t बना के देगा, तो आप इसे नहीं बदल सकते, ये तो आपका आउटपुट मिल रहा है. हाँ, जब आप इसे एज अ इनपुट डालते हैं सर्किट में, इफ यू यूज दिस एज अ इनपुट इन द सर्किट, अब आपको करंट क्या मिलने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन. हमारा करंट कैसा होगा, क्या वो सेम फेज में होगा, क्या वो डिफरेंट फेज में होगा, और अगर डिफरेंट में होगा तो कौन लीड करेगा और कितना से लीड करेगा, तो वो हम लोगों ने देखा ओनली आर में, ओनली एल में. नाउ इट इज टर्न फॉर ओनली कैपेसिटर. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. सो लैंग्वेज व्हाट वी हैव एज यूजुअल, लेट अस कंसीडर एन कैपेसिटेंस, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C. आप
पे कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना है C. सो वी आर कंसीडरिंग अ कैपेसिटर विद द कैपेसिटेंस C connected across an AC source E is equal to E naught sin omega t. तो आप लोगों ने इसे एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अब हमें क्या करना है, हम करंट के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे जैसा अब तक हम लोग करते आए हैं. तो हमने रजिस्टर को जब यूज किया तो वहां पे हम लोगों ने ओम्स लॉ अप्लाई किया. जब इंडक्टर था तो उसके लिए करंट को निकालने का अपना तरीका था E इज इक्वल टू माइनस एट डी आई बाई डी टी. सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटर को करंट के साथ कैसे जोड़े, यानी C को करंट के साथ कैसे जोड़े, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट सिंस वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू C into V, where V stands for the voltage. Okay, तो voltage means EMF. तो आप इसे C into E भी लिख सकते हो. Okay, here the E stands for the EMF. So what is the charge which is being stored inside the capacitor? It is equal to C E naught sin omega t. So this is the expression for the charge stored inside the capacitor. और सीधा सा बात है, एक बात जो आपको समझना पड़ेगा, ये वो चार्ज है जो कैपेसिटर में स्टोर हुआ. तो डेफिनेटली अगर कैपेसिटर में Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ है तो थ्रू द कैपेसिटर मीन थ्रू द सर्किट इतना ही चार्ज फ्लो किया होगा. जब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो कैपेसिटर में स्टोर होगा. यानी हमारा, आपको याद है कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, वन ऑफ द प्लेट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, विल बिकम पॉजिटिव चार्ज and the another plate will gain the electron and become negatively charged. तो जो प्लेट लूज करेगा उधर से चार्ज फ्लो होके दूसरे प्लेट की तरफ जाएगा. तो डेफिनेटली जितना चार्ज स्टोर हुआ है, प्लीज जितना चार्ज स्टोर हुआ है वही चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा है. ड्यूरिंग द चार्जिंग की बात कर रहा हूं. ओके, तो अगर ऐसा है, सो thus the current through the circuit, so the current through the circuit, सर्किट से कितना करंट होने वाला है, सो I is equal to dq by dt. We all know that rate of flow of charge means in mathematics differentiation of charge with respect to time. So let's start with that. C E naught sin omega t divided by dt. Okay, so in the my mistake, it is the differentiation. Okay, so C capacitance and E naught, please it is E naught, means it represents the peak EMF, it is not the efficient naught. इस बात को थोड़ा सा याद में रखेंगे. So d by dt of sin omega t. So can we have the differentiation? So the differentiation is C E naught sin differentiation cos omega t मल्टीप्लाई बाय, सिंस अदर देन t है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है. हाँ, इंडक्टर में हम लोगों को डिफरेंस इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं वो डिवाइड में जाता है, अदर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, तो I इज इक्वल टू ओमेगा C E नॉट cos ओमेगा t. दिस इज बीन द एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारा एक्सप्रेशन है करंट का और ये हमारा एक्सप्रेशन है EMF का. सो द सेम प्रॉब्लम लाइज हियर. वापस से वही सिचुएशन आ गई जो इंडक्टर में आई थी कि हमारा जो EMF है वो साइन फंक्शन में है और हमारा जो करंट है वो कॉस फंक्शन में है. सो सिंस EMF एंड करंट आर इन अ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सो आई कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम. मैं दोनों के एंगल को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये साइन एंगल में है, ये कॉस एंगल में है, मींस कॉस फंक्शन में. So I have to replace or I have to turn one of the function into the another. तो हम लोग EMF के साथ तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे लिए कांस्टेंट इनपुट है, तो हम लोग करंट को बदलने की कोशिश करेंगे. And as you all know that since cos theta is equal to sin 90 plus theta. ओके, एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था इंडक्टर में, sin 90 माइनस थीटा. तो मैं दोनों बातें एक साथ कर लेता हूं. लेट्स टॉक अबाउट बोथ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट अ सेम टाइम. cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा
and cos theta is also equal to sin 90 minus theta, यानी cos theta की वैल्यू sin 90 plus theta भी होती है और cos theta की वैल्यू sin 90 minus theta भी होती है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे, बट इन द पास्ट मींस इंडक्टर में हमने इसे यूज किया, बिकॉज इफ यू चेक आउट दैट डेरिवेशन आप वहां देखेंगे कि वहां पे आउटसाइड एक नेगेटिव साइन था, बट यहां पे कोई भी नेगेटिव साइन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करते हुए पॉजिटिव वाले पैरामीटर को यूज करेंगे। तो thus I is equal to ओमेगा c e naught sin 90 plus theta, and here the theta is omega t. Let's rearrange little bit, इसे थोड़ा सा rearrange करते हैं। e naught multiply by omega c, तो can I write in this manner? अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो is that correct to write? e naught divided by 1 by omega c, तो टेक्निकली वो मीनिंग तो वही होने वाला है, and it would be sin omega t plus pi by 2. Okay, either you write pi by 2 plus omega t or either you write omega t plus pi by 2. Now we will take this as a e naught, let e naught by 1 by omega c as a I naught. हम लोग इसको as a I naught लेंगे और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। Thus I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. This is the final expression for the current. Why it is being called as a final expression? Because ये जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है EMF भी उसी फंक्शन में था। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। So when you try to compare both of them, first of all, what is the conclusion that you got from here? EMF, its equation is E naught sin omega t, but on the other side, the current has an equation I naught sin omega t plus pi by 2. तो हमारे पास करंट का इक्वेशन है sin omega t plus pi by 2 और इसका वो इक्वेशन था omega t. So its phase angle is omega t and its phase angle is omega t plus pi by 2. So what is the phase difference between them? दोनों में phase का difference कितना है? So what we get to know that phase difference is how much? Pi by 2. यहां पे भी एंगल में डिफरेंस पाई बाई 2 है जैसा इंडक्टर में था, बट कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। इट्स फेज इज ओमेगा टी एंड इट्स फेज इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब कौन आगे चल रहा है? हु इज लीडिंग नाउ? दिस टाइम द करंट लीड्स द वोल्टेज। सो इन कैपेसिटर करंट लीड्स EMF or you can say voltage, and by how much angle it leads? It lead by the angle pi by 2. So this is the point जो आप लोगों को यहां से समझना है। So कैपेसिटर का हमारा कंक्लूजन क्या आया? इसी कंक्लूजन को मैं इसी के साथ ऐड करता हूं। So the third one was when only capacitor is connected. So your E was E naught sin omega t and your current was I naught sin omega t plus pi by 2, which indicates फेज का डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2। तो इसमें भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 था, इसमें भी है, बट इस बार कहानी बदल गई और इस बार कौन लीड कर रहा है? करंट। सो इन कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल? बाय पाई बाय 2। इंडक्टर में कौन लीड करता है? ईएमएफ लीड कर रहा है। सो इन इंडक्टर ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। ओके, सो दिस इज योर ओनली कैपेसिटर रिजल्ट। अभी भी और कुछ बाकी है, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बाकी अदर चीजों पे भी ध्यान देंगे। Am I clear up to here? Okay. So since we got the conclusion and I have written the conclusion of only capacitor here, मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा डाटा। So चलिए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। And when we try to look on this, हमें यहां से एक आइडिया मिला। क्या मिला? सिंस एक चीज जो आपको फाइंड आउट हुआ that I naught is equal to something E naught divided by omega c. This was the thing that we got. हम लोगों ने E naught by 1 by omega c को I naught लिख दिया।
अब देखिए आपके पास जो हमेशा से फॉर्मूला है करंट, द फॉर्मूला जो हमारे लिए यूनिवर्सली हर बार काम कर रहा है, दैट फॉर्मूला इज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। तो करंट, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। ये हमेशा चलता है, ऐसे इंडक्टर पे भी चला था, तो वहीं से हमें इंडक्टर की अपोजिशन मिली। और इफ वी कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन की करंट हमेशा वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन होता है, सो हियर वी गॉट द अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर। हमें किसकी अपोजिशन मिल गई? कैपेसिटर की अपोजिशन मिल गई, बिकॉज इस बार कैपेसिटर कनेक्टेड था एंड वी विल कॉल दिस एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप इसे क्या बुलाएंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इट्स सिंबल वुड बी XC। द अपोजिशन बाय इंडक्टर उसे आप बुलाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और यहां पे क्या है? XC। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपोजिशन क्या मिल रहा है? 1/ωc। So this is the opposition offered by the capacitor that we got. और ओमेगा की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, इट मे ऑल्सो बी रिटन एज 2πμ into C। क्लियर है? So this is the capacitive reactance, means the opposition offered by the capacitor. Done है? And how the opposition relate with the frequency? It is being inversely proportional. यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ प्रैक्टिकली XC versus frequency, the graph goes in a negative slope, but इस बार straight नहीं होगा, little bit curve चलता जाएगा। So when we apply the practically, जैसे जैसे हम लोगों ने frequency को बदला, हमारी XC की वैल्यू भी बदलती गई, but not in that exact straight line manner, little bit curve में भी और मिला। Done है? So this is being little bit more extra thing when the only capacitor is connected across the AC source। तो अगर हम AC सोर्स के अक्रॉस में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? वहां पे हमें वहां पे एक अपोजिशन मिलने वाली है। तो अब तक का कंक्लूजन दैट व्हेन यू कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस AC सोर्स द फेज डिफरेंस वुड बी π/2। और लीड कौन करेगा? करंट लीड करेगा इस बार। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फेजर डायग्राम। तो हमारा सर्किट डायग्राम हो चुका है। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेकंड डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो एक बार फेजर डायग्राम पे वर्क करते हैं। सो दिस इज योर रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहले हमारा EMF क्या था? हमारा EMF इट वाज E0 sin ωt। तो व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द EMF? The phase angle of the EMF is, the phase angle is omega t। So EMF का आपका phase angle omega t। So length आपको E0 दिखाएगा और ये reference line से आपका जो phase angle है this is omega t। So this is the representation of the EMF in terms of the phase angle। I am again repeating beta, as you all know that phasor diagram, it is just only the way of representation, it is not any type of graph, it is not any type of variation or any other thing। okay, now what is the current? तो current और voltage में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने एंगल का होगा? π/2 एंगल। और कौन लीड करेगा इस बार? इस बार करंट लीड करेगा। लीड करेगा मतलब आगे जाएगा। So this time the current will lead the voltage by π/2। तो वोल्टेज से π/2 एंगल आगे जाएगा। This is your current I0 which is π/2 leads the voltage। वोल्टेज से π/2 एंगल आगे। तो ये हमारा करंट हो गया। So करंट का मेन यानी टोटल फेज एंगल क्या था? So the net phase angle of the current is omega t plus π/2। and as you all know that कि फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से बनाया जाता है। तो इस करंट का फेज एंगल क्या होगा? ओमेगा टी प्लस π/2। आई नो फिर से भाई कि दोनों ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ऐड हो रहे हैं,
बट आई एम अगेन रिपीटिंग, हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करके नहीं लिख रहे हैं. वी आर नॉट राइटिंग दैट दिस होल एंगल इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बाय एडिंग बोथ ऑफ देम. हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किसी भी इक्वेशन का, वेदर इट इज करंट और वेदर इट इज वोल्टेज, व्हाटएवर बी इट्स फेज एंगल, उसका जो भी फेज एंगल है वो हमेशा रेफरेंस लाइन से बनाया जाएगा. चाहे वो आपको ऐड होते हुए दिखाई दे, चाहे आपको कुछ भी होते हुए दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये कोई ग्राफिकल या फिर अदर फैक्टर नहीं है जिसमें आप रिलेशन निकालो. आप तो बस एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर है? सो दिस इज बीन द फेजर डायग्राम फॉर ओनली कैपेसिटर, जिसमें आपका करंट लीड करेगा वोल्टेज से. कितना एंगल लीड करेगा? पाई बाय 2. डन है? लेट्स डू द फाइनल थिंग, एंड दैट फाइनल थिंग इज ग्राफिकल डायग्राम. ठीक है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं. तो ग्राफिकल डायग्राम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ईएमएफ. सो पहले ईएमएफ का इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो डेफिनेटली हमारा जो ईएमएफ है वो साइन ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है. So this is 0, this is pi, this is 2 pi. Okay, so this is r e naught, e is equal to e naught sin omega t. Am I clear? चलिए अब करंट के बारे में बात करते हैं. तो हमारे पास करंट का इक्वेशन क्या है? It is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. तो चलिए स्टार्ट करें. इसका मतलब करंट हमेशा वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे चलेगा. इसका मतलब अगर वोल्टेज 0 पे है तो करंट पाई बाय 2 पे होगा. पाई बाय 2 मतलब मैक्सिमम. तो करंट ऊपर से शुरू होगा इस बार. ठीक है? इंडक्टर में कहानी उल्टी थी. जब वोल्टेज 0 पे था तो करंट पाई बाय 2 था, बट माइनस में था तो वो पीछे से शुरू हुआ. इस बार आगे से शुरू होगा. ठीक है? तो जब ये 0 पे है तो ये 90 से शुरू होगा. जब ईएमएफ 90 पे पहुंचेगा तो आपका करंट 180 पे पहुंच चुका है, और साइन 180 0 होता है. जब आपका ईएमएफ 180 पे पहुंचेगा तो आपका करंट 270 पे पहुंच जाएगा. करंट 270 पे, क्योंकि प्लस पाई बाय 2 चल रहा है ना. तो जब ये 180 की वैल्यू दिखाएगा तो ये 270 की वैल्यू दिखाएगा. जब आपका ईएमएफ 270 पे पहुंचेगा तब आपका करंट 360 की वैल्यू दिखाएगा. और जब आपका करंट 360 पे पहुंचेगा तो वापस से वो साइकिल कंप्लीट करके मैक्सिमम तक. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्राफ I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Am I clear to that? So ये हमारा ग्राफ है I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 का. यानी pi by 2 एंगल हमेशा आगे चलेगा. जब ओनली इंडक्टर था तो करंट हमेशा pi by 2 फेज एंगल पीछे चलता था. सो दिस इज होल अबाउट द ओनली कैपेसिटर. तो ये हमारे ओनली कैपेसिटर का आज का लेक्चर था और आज का टॉपिक. सो अप टू हियर जो चीज हमारे पास कंक्लूजन में है, दिस इज ऑन दी माय राइट हैंड साइड. मेरे राइट हैंड साइड में आपको सारे कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, बिकॉज यही कंक्लूजन्स अभी आपको आगे के न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे. ओके, तो अभी के लिए मैं आपके साथ वेरी स्मॉल और सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा. जस्ट सिंपल, ताकि हम लोग इसके ओवरव्यू में और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें. ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल के लिए आपको अप्रोच के बारे में डिस्कस करता हूं. सो बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द टोटल कंक्लूजन. तो चलिए अब तक के सारे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. ओके, सो हम लोगों ने एसी स्टार्ट किया विद द इक्वेशन. तो हमें वहां से कुछ अलग अलग टाइप के करंट्स के बारे में पता चला. सो वी गेट टू नो अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज करंट. So average current over complete cycle is 0. तो वो तो 0 है complete cycle में. Now the most important जो हमें अब समझना है, जो जिससे हमें टीचर न्यूमेरिकल करवा सकता है, it is the RMS. So RMS current, IRMS is equal to 0.707 of I naught, or you can also write as a I naught by root 2. Okay, similarly we can have RMS voltage, it is equal to 0.707 of E naught,
or you can also write as a E naught by root 2. So RMS voltage और peak current, RMS voltage and peak voltage, RMS current and peak current हमारे पास relate है. The most important formula, or you can say, if I say इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है, मतलब बिल्कुल हर जगह यूज होने वाला, everyday में, the formula is current is always equal to voltage divided by opposition. एक स्टैंडर्ड एंड कॉमन फॉर्मूला जो आपका हर बार यूज होने वाला है. कैसे यूज करेंगे उसे देखेंगे एक बार. टीचर इज आस्किंग फॉर करंट. मान लीजिए टीचर ने आपसे करंट के वैल्यू के बारे में पूछा. चलिए करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं. तो इफ द टीचर इज आस्किंग फॉर पीक करंट, टीचर किसकी बात कर रहा है? पीक करंट के बारे में कैलकुलेट करवाना चाहता है. तो अगर करंट पीक पूछा गया है तो वोल्टेज भी पीक लीजिए, डिवाइडेड बाय अपोजिशन. अब आप देख चुके हैं कि हमारे पास अपोजिशन 3 टाइप्स का है. देयर आर द 3 अपोजिशंस जो हमारे पास हो सकती हैं. फर्स्ट इज रजिस्टर की अपोजिशन. तो रजिस्टर की अपोजिशन को ही रेजिस्टेंस बुलाते हैं, तो उसमें तो कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है. बट इंडक्टर की अपोजिशन को हम लोग एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपेसिटर की अपोजिशन को हम एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट मी क्लियर यू वंस अगेन बेटा, एल एंड सी दीज आर नॉट द अपोजिशन. कोई ऐसे ना करे कि रजिस्टर की अपोजिशन अगर आर है तो इंडक्टर की अपोजिशन एल होगी. मैं इस बात पे फिर से दोबारा से बात कर रहा हूं. L shows the ability of self induction. C shows capacitance, the ability to store the charge. ये अपोजिशन के बारे में नहीं बताते हैं, ये एबिलिटी ऑफ इंडक्शन और एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज. बट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही अपोजिशन है. आर का मतलब अपोजिशन ऑफर्ड. तो इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है जिसको हमें यहाँ पे ध्यान देना है. Why? क्योंकि I know R का फॉर्मूला है, आपके दिमाग में आ रहा है रो L by A. बट इफ यू चेक आउट दिस फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें तो ये फॉर्मूला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. ये फॉर्मूला किसी भी एंगल से AC सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करता, जो AC है. और AC सोर्स के पास क्या होती है कि वो वेरी करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है. द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग AC और DC का डिफरेंस यही है. AC ऑसिलेट करता है और जो चीज ऑसिलेट करेगी उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी. DC एक ही डायरेक्शन में रहता है, यानी DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. तो इसका मतलब रजिस्टर को आपकी फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वो आपके साथ एज यूजुअल काम करेगा. बट इंडक्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और कैपेसिटर की अपोजिशन इनवर्सली. तो याद रखेंगे अपोजिशन कौन सा लेना है. जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, जैसा करंट वैसी वोल्टेज. अगर पीक करंट है तो पीक वोल्टेज, आरएमएस करंट है तो आरएमएस वोल्टेज. सीधी सी बात है. अब प्रॉब्लम है अपोजिशन की, तो अपोजिशन कौन सा लेना है. तो जिस डिवाइस के बारे में सर्किट में बात की जाएगी, इफ द टीचर इज टॉकिंग अबाउट रजिस्टर तो आपकी अपोजिशन आर आ जाएगा. इफ टीचर इज टॉकिंग अबाउट इंडक्टर तो आपकी अपोजिशन में एक्सएल आ जाएगा. और इफ टीचर इज टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटर तो आपकी अपोजिशन में एक्सी आ जाएगा. और एक्सएल और एक्सी के फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. सिमिलरली अगर टीचर आपसे आरएमएस करंट की बात कर रहा है तो वोल्टेज भी आरएमएस लो. अगर आपके पास आरएमएस वोल्टेज नहीं है तो फिर आपको बनाने का तरीका ये रहा. सीधी सी बात है बेटा, अगर आपको आरएमएस वोल्टेज यूज करना है बट आपको पीक वोल्टेज दे रखी है तो पीक से आरएमएस बना लीजिए. तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय, अगर रजिस्टर है तो आर, अगर इंडक्टर है तो एक्सएल और अगर कैपेसिटर है तो एक्सी. यानी सीधा सा बात यही है, जैसा पूछा गया वैसा काम करो. वैसे अगर आप इसे याद करने जाएंगे तो आपके पास 336 फॉर्मूले हैं. देखो रजिस्टर के लिए I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R, इसे हम लोगों ने डेरिवेशन में यूज किया था. इंडक्टर के लिए I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय XL जो कि ओमेगा L के बराबर था. ओके.
कैपेसिटर के लिए I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय XC विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो तीन फॉर्मूले तो ये हो गए बेटा। अब तीन फॉर्मूले आरएमएस के बना सकते हो अगर टीचर ने आरएमएस पूछा। हाँ आप ये बोल सकते हैं नो सर मैं पहले इस फॉर्मूले से पीक करंट निकाल लूंगा और वहां से फिर आरएमएस, यानी आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है आपके लिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमेशा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? जैसा करंट वैसी वोल्टेज और जिस डिवाइस के बारे में बात की जाए उसकी अपोजिशन। एम आई क्लियर टू दैट? सो रजिस्टर कोई लीड नहीं करेगा, कोई लैग नहीं करेगा। कंक्लूजन एक बार रिवाइज करा रहा हूं। नोबडी इज गोइंग टू लीड, नोबडी इज गोइंग टू लैग। इट मींस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दोनों सेम ही फेज में चलेंगे, ठीक है। यानी phi 0 है और उसका रेजिस्टेंस R है, उसका पोजीशन R है। इंडक्टर, जब आप इंडक्टर करेंगे तो फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, दोनों के फेज में डिफरेंस पाई बाय 2 होगा। और इसमें लीड कौन करेगा? ईएमएफ लीड द करंट। सो ईएमएफ लीड द करंट बाय पाई बाय 2 जब आप इंडक्टर को लगाते हैं। और इसकी अपोजिशन XL इज इक्वल टू ओमेगा L, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बुलाते हैं। नाउ द कैपेसिटर, सो द कंक्लूजन ऑफ कैपेसिटर इज करंट लीड द ईएमएफ। इस बार करंट ईएमएफ को लीड करेगा, बट कितने एंगल से? सेम पाई बाय 2 से। और इसके अपोजिशन को आप लोग XC मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बुलाएंगे। Am I clear to that? So this is the only parameter जहां पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अभी न्यूमेरिकल प्लीज मैंडेटरी है। It has been request to each and every one student out there. Please after this lecture, मैं केवल इस लेक्चर में एक ही डेरिवेशन रखा, only कैपेसिटर। यानी अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? We have done only resistor, we have done only inductor and we have done only capacitor। हमने तीनों ओनली कर लिए, मतलब जब केवल R था, केवल L था, केवल C था। हमारा फ्यूचर प्लान RL means a circuit which connects the series connection of resistor and inductor. Then our future plan is RC, आगे का हमारा। Then our future plan is LCR। ओके, LC ऑसिलेशन प्लीज ये हमारे कंटेंट में नहीं है, बट हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस रह गए, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस। बट आप कॉम्बिनेशन को तभी अंडरस्टूड कर पाएंगे, और ये कॉम्बिनेशन बहुत इजी होंगे, बट आप इन कॉम्बिनेशंस को तभी अंडरस्टूड कर पाएंगे जब आप इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। जब आपको मालूम है कि रजिस्टर अगर आएगा तो वो क्या करेगा, तो रजिस्टर क्या करेगा? किसी को लीड नहीं करवाएगा, किसी को लैग नहीं करवाएगा। इंडक्टर आएगा तो क्या करेगा? इंडक्टर आपकी वोल्टेज को लीड करवाएगा, वो भी पाई बाय 2 एंगल से। और अगर कैपेसिटर आएगा तो वो आपके करंट को लीड करवाएगा पाई बाय 2 से। तो आपको इंडिविजुअल डिवाइस के कैरेक्टर मालूम होने चाहिए कि कोई भी डिवाइस अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ तो क्या होने वाला है। अगर R और L आएंगे तो R कहेगा कोई लीड नहीं करेगा, कोई लैग नहीं करेगा। L कहेगा क्या? वोल्टेज लीड करेगा। फिर हम देखेंगे क्या होता है। सिमिलरली RC, और फिर जब तीनों आएंगे तो तब भी देखेंगे। एक कहेगा कुछ नहीं करना, कैपेसिटर कहेगा करंट लीड करेगा, इंडक्टर कहेगा वोल्टेज लीड करेगा। तो हम लोग ये सारी चीजें वहीं पे निकालेंगे। डन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओनली R, ओनली L और ओनली C को समझना है, क्योंकि यहां से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट न्यूमेरिकल पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल के लिए टीचर, फ्रैंकली बता देता हूं, लेट्स डिस्कस फ्रैंकली, फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस टीचर एंड एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई टू गिव द LCR। टीचर हमेशा LCR कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल देना पसंद करेगा आपको। Why? Because LCR अगर आएगा तो आप तीनों एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर पाओगे। L भी है तो आपको L को भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, C का भी, R का भी। तो टीचर हमेशा एक ऐसा न्यूमेरिकल रखने का कोशिश करेगा जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करवाए जा सके विद इन अ वन सिंगल न्यूमेरिकल। तो जिसमें LCR या फिर किसी कॉम्बिनेशन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपैरिजन टू ओनली R, ओनली L और ओनली C। बट इट डज नॉट मीन कि प्रीवियस ईयर्स में कभी इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट एक लार्ज नहीं बन पाया, बट छोटा तो है। बट इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है।
बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर ओनली आर, ओनली एल, ओनली सी, जब आप स्मॉल स्केल लेवल पे एक एक डिवाइस की न्यूमेरिकल अगर समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल ऑफ सिंगल डिवाइस, मींस अगर आपने आज की असाइनमेंट के न्यूमेरिकल अच्छे से कर दिया, यू गेट अंडरस्टूड एंड यू गेट कंफर्टेबल इन दैट, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग 80 to 85% कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल अपने आप हो जाएंगे जैसे ही आगे आएगा। ओके बस क्या बदलेगा, जहां पे सिंगल थे वहां पे कॉम्बिनेशंस आ गए बस। ओके तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। एम आई क्लियर? सो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द असाइनमेंट, एवरीवन आउट देयर, प्लीज नोट इट डाउन ऑल द कंक्लूजन ऑन अ वन सिंगल रफ पेज। सारे बच्चे एक ही पेज पे सारे रिजल्ट लिख लेंगे, या तो अपने रफ पे लिख लो और इन योर फेयर नोटबुक फेयर में कर लेते हैं, तो इट इज बीइंग वेल एंड गुड कि आपको सारे रिजल्ट एक पे मिल जाएं, एक ही जगह पे। ओनली आर ने हमें क्या क्या सिखाया, ओनली एल ने हमें क्या सिखाया, ओनली सी ने हमें क्या सिखाया। ओके हमारे पास ये चीजें कैसे रिलेट है और मैं कैसे करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। गॉट दैट पॉइंट? सो विद दैट नोट, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, क्योंकि हमने ओनली सी कर लिया। We will do the practice of the numericals. So for the numerical, you will get a link in the description box from where you can download your assignment. Please download the assignment seriously and complete it as soon as possible. And please clear your doubts. अपने doubts सबसे ज़्यादा important है, उन्हें clear करना, उन्हें gather करके मत रखिए. Okay? So with that note, that's all from the today's lecture. Complete all the three concepts, तीनों concept को revise कीजिए, तीनों को done कीजिए and do the assignment related to that. Thank you very much.